our focus to the developments that are taking place in Bihar. Remember, as far as Bihar is concerned, it's a historic day. A political transition is taking place in Bihar as Nitish Kumar is set to step down as the chief minister and move to Rajya Sabha. Now, this brings an end to his 2-decade-long tenure, which is the longest in Bihar's history. He chaired his last cabinet meeting today and will now, now Governor Syed Ata Hasnain at Rajya Sabha. He will meet the governor. He'll be at Raj Bhavan to submit his resignation. According to sources, Nitish Kumar got emotional while addressing his last cabinet meeting. Following the cabinet meet, the BJP legislature party will convene to elect its new leader in the presence of party observer Shivraj Singh Chauhan. After that, a meeting of the NDA legislators will be held at the Assembly Central Hall to endorse the new chief minister and formally stake claim to form the government. जहाँ तक इस सरकार की बात है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जो भी सरकार होगी, वो नीतीश की ये जो सरकार है 25 से 30 और आगे भी नीतीश कुमार जी के सहयोग और मार्गदर्शन में चलेगी। उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार को रहेगा, उनका सुझाव हमेशा इस सरकार को रहेगा। बिहार के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताते हुए बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि हम समृद्ध बिहार बनाए हैं, सशक्त बिहार बनाए हैं, विकसित बिहार बनाए हैं और आगे भी जो सरकार बनेगी उस सरकार में पूरी भूमिका, पूरी मार्गदर्शक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्य करेंगे और हमेशा बिहार के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति और आशीर्वाद उनका बना रहेगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का फायदा जो बिहार को मिला, जिस कारण विकसित बिहार हो रही है, अब वह फायदा देश के लोगों को। हम तो अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के ही नहीं, मैं तो कहूंगी पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं, पूरे देश को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जिस तरीके से उन्होंने बिहार को अपने कार्यकाल में आगे ले जाने का काम किया है, बिहार की महिलाओं को आवाज देने का काम किया है, सशक्त बनाने का काम किया है, मैं ये चाहूंगी और इसीलिए मैं हमेशा कहते आई हूँ कि मैं बहुत ही मेरा अंदर से इच्छा था कि जो भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने उसका फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ले। So as Nitish Kumar's era ends, let's take a look at who could be in line to become the next chief minister. While the BJP is known for springing surprises, there are 3 names that are currently doing the rounds. The first is that of Deputy CM Samrat Chaudhary, who is a key leader from the Kushwaha community. It is Bihar's second largest OBC group and his elevation would significantly bolster BJP's OBC arithmetic. Union Minister of State for Home Nityanand Rai is another strong contender. He is a 4-time MLA from Hajipur and has also served as Bihar BJP president. And then you have Dilip Kumar Jaiswal. He is also in the fray. He is a senior leader who had previously held the post of Bihar BJP chief. So these are the 3 faces in the race to become the new chief minister of Bihar. These are the contenders in line. Let's take a look at who Samrat Chaudhary is. Currently, he is the deputy chief minister in the state of Bihar. He also holds the home portfolio. The home portfolio is also with Samrat Chaudhary. Former BJP Bihar president, he has held that post as well. Nitish Kumar's trusted aide. He is known to be Nitish Kumar's trusted aide. As far as his political journey is concerned, he started his career with RJD in 1999. Then served as minister in Rabdi Devi's government. Now, in 2000, he was elected as the MLA from Parbatta. Samrat Chaudhary switched sides. He switched to JDU in 2014. Served as minister in Jitan Ram Manjhi's government as well. And then, of course, later he went on to join the Bharatiya Janata Party, which happened in the year 2017. So that's about Samrat Chaudhary, who is currently the deputy chief minister. Let's take a look at his strong political roots. He is the son of Shakuni Chaudhary, a 6-time MLA from the constituency of Tarapur. Samrat Chaudhary's mother, Parvati Devi, is also an ex-MLA. So it's a political family that he comes from. We have some breaking inputs coming in on the broadcast, and this is the inside scoop that we are getting for you on Bihar cabinet rejig. Nishant Kumar won't be the deputy chief minister.
So Nitish Kumar's son Nishant Kumar has declined the cabinet role. Remember earlier there were talks that he could assume charge as the Deputy Chief Minister of the state of Bihar. But now we are given to understand that both Deputy Chief Ministers would be from the JDU. Vijender Yadav likely could assume role of Deputy Chief Minister along with Vijay Chaudhary. Let's take a look at this ground report filed by my colleague Saket. मजबूत वजह जो है All right, so at the moment, this is the big news coming in from the state of Bihar. As Nitish Kumar's era ends, his son has decided to not be part of the cabinet. He won't be assuming charge as the Deputy Chief Minister, which earlier, remember, was a speculation that Nishant Kumar, son of Nitish Kumar, could assume the role of Deputy Chief Minister. So now, at the moment, both Bihar Deputy Chief Ministers could be from the JDU camp itself. Vijay Chaudhary to be the Deputy Chief Minister along with Vijendra Yadav. So these are the names that have come to fore from the JDU to assume charge as the Deputy Chief Minister of the state of Bihar. Meanwhile, there are these visuals coming in as well. Let me go across to Amit, my colleague, who's getting us more inputs. Amit, अभी बड़ी खबर आई है कि निशांत ने इनकार कर दिया है कैबिनेट का हिस्सा बनने से, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। अब एक बड़ी खबर है और इसको लेकर लगातार पार्टी के कई तमाम जो नेता थे जेडीयू के, वो इस बात को लेकर मनाने पे लगे हुए थे कि किसी भी तरह से निशांत इस बात को स्वीकार करे और वो सरकार में शामिल हो। और आपको याद होगी कल शाम को इस बात की जानकारी भी आई थी कि तमाम लंदन सिंह, संजय झा, इसके अलावा और कई ऐसे नेता थे जिन्होंने उनसे बात की और इसके बाद ये कहा गया कि वो मान गए हैं। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई है बिहार से कि वो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी वो नहीं उठाएंगे। और इसीलिए विजेंद्र यादव की बात आ रही है और दूसरे नेताओं की बात आ रही है कि वो लोग उनकी जगह अब डिप्टी सीएम होंगे। तो एक जो कहावत, दरअसल ये कोशिश ये थी कि निशांत अगर डिप्टी सीएम होंगे तो क्योंकि पार्टी अब भविष्य में पार्टी आगे भी मजबूती से रहे, पार्टी को आगे अगर ले जाना है तो उसके लिए जरूरी था कि नीतीश कुमार भले ही अब जिम्मेदारी से वो हट रहे हैं, भले वो कह रहे हो कि वो एक गार्जियन के तौर पर होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर धीरे धीरे उनकी भूमिका कम होती जाएगी, उनका स्वास्थ्य उस तरह से है नहीं। तो ऐसे में निशांत के एक बड़े पोजीशन पर रहने से पार्टी को एक तरह से बांधे रहते, लेकिन इसीलिए पार्टी के जो तमाम लोग थे इस बात की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से वो मान जाए, लेकिन आखिरकार वो नहीं माने हैं, उन्होंने मना कर दिया है। अब जो दोनों जो डिप्टी सीएम होंगे वो विजय चौधरी होंगे और इसके अलावा जो वहां पर मंत्री भी हैं और इसके अलावा विजेंद्र यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी ये दोनों जो है डिप्टी सीएम बन सकते हैं। और थोड़ी देर में देखिए 4 बजे ये मीटिंग होने वाली है। इसके बाद ये सारी चीजें जो है तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने रिजाइन भी कर दिया है मुख्यमंत्री के पद से, जो करीब 20 साल से ज्यादा का जो एक आप कह सकते हैं कि बिहार में एरा था नीतीश कुमार का, वो अब खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है। और थोड़ी देर बाद नए चेहरे के तौर पर जो बीजेपी की बैठक होने वाली, एनडीए की बैठक है, उसमें बीजेपी और एनडीए के नए सीएम के चेहरे के तौर पर जो चेहरा होगा, जो नाम होगा, वो सामने आ जाएगा। जी अमित, जानकारी ये भी मिल रही है कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे, और भी 2 नाम हैं उसमें, दिलीप जायसवाल का और उनके अलावा जो एमओएस होम नित्यानंद राय हैं उनका। लेकिन सम्राट चौधरी के चांसेस काफी ज्यादा है। इस तरह की बात वहां राजनीतिक हलकों में हो रही है। कुल मिलाकर के ड्राइवर सीट में बीजेपी रहेगी और उनका साथ जो 2 देंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, उनके जेडीयू कैंप से होने की संभावना है। देखिए, एक तरह से आप कहिए तो जो सरकार की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। इससे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और 2 डिप्टी सीएम थे। अब जबकि कमान जो है बीजेपी के पास होगी, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो जो 2 डिप्टी सीएम की जो पहले बीजेपी के पास था, अब वो जेडीयू के पास हो गया। तो इस तरह से सरकार की जो तस्वीर है लगभग पूरी तरह से बदल जाएगी। पहले 2 जो डिप्टी सीएम की जगह अब जेडीयू के होंगे। तो लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी जो फ्रंट रनर में सम्राट चौधरी है। हालांकि बीजेपी सरप्राइज देती रही है, अगर सरप्राइज कुछ देती है तो उसमें कोई सांसद होंगे इसकी संभावना नहीं के बराबर है। जो मुझे जब सोर्सेज के हवाले से मिल रही है कि नाम तो लगभग तय है कि सम्राट चौधरी होंगे, लेकिन अगर सरप्राइज एलिमेंट होता है तो वो एमएलसी या एमएलए में से कोई होगा और वो ईबीसी और ओबीसी में से ही होगा। तो ऐसे में इंतजार मुझे लगता है थोड़ी देर करनी चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है वो, हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ऐसे में अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है कि सम्राट चौधरी का तो नीतीश एरा बिहार में खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा में उनकी जर्नी शुरू हो गई और उनके बेटे ने इनकार कर दिया है कैबिनेट का हिस्सा बनने से। अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स। मूविंग ऑन।
Let's also understand why this is significant for the Bharatiya Janata Party, for the BJP to have its chief minister in the state of Bihar. With 89 MLAs, it is the single largest party in the 243-member Bihar Assembly. And this transition is set to end BJP's long wait to have its own chief minister in the state of Bihar, even as it had held the deputy CM post over the last 2 decades. The leadership change marks a major milestone for the Bharatiya Janata Party, as Bihar has been the only Hindi heartland state where the party has so far not held the top post. However, politics continues unabated, with opposition parties alleging that Bihar government will now be run by PM Modi and Amit Shah. जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर गए। ये तो दिख रहा था सामने कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, और अभी जो रहेंगे उनका कोई मतलब नहीं है। अब अमित शाह जो चाहेंगे वैसे बिहार चलेगा, मुख्यमंत्री की कोई ताकत नहीं है अब, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसको अमित शाह चाहेंगे, जिसको मोदी जी चाहेंगे। बिहार तो लगातार पिछड़ते जा रहा था। नीतीश जी के 20 साल के शासन में भी आप देखिए ना, नीति आयोग का रिपोर्ट निकाल के प्रायः सभी मानकों पर बिहार लगातार पीछे चला जा रहा था, और सारे पैरामीटर्स पर कोई बहुत अच्छा ये हुआ नहीं। एक ही ये था कि सांप्रदायिक सौहार्द ठीक था। देखिए, मैं मुख्यमंत्री बिहार को जो आगे लेकर जाए, जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच रखे, जो बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य करे, ऐसे नेतृत्व की कल्पना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे समर्थक करते हैं। With that, we're slipping into a very short break. There's a lot more lined up on the other side. Stay on with us.